योर इनर शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर आउटर। आप बाहर दिखाओ मैं बहुत हूँ, अंदर से डर लग रहा है, वो क्या फायदा। चिल्ड्रन दैट ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट हम अपने बच्चों को इमोशनल हैंडलिंग नहीं सिखाते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ टू डील विद दिस इमोशन, बट व्हाट इज गोइंग इनसाइड, व्हाट अ पर्सन, कोई भी हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो, वो सेल्फ से क्या टॉक करता है। आई यूज्ड टू आस्क द मदर व्हाट हैपेंड, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था कि जब आपने इस बच्चे को कैरी किया हुआ था। देन द मदर started, they start crying because they were going through very bad. All the emotions the child carried from there only. उसका सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो वहीं से ही बन जाता है। So this is known as generational traumas that carry on from one generation to generations. yes. इसीलिए हमारे, क्योंकि हमारे धर्म ने तो इसीलिए ही बारी बारी बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, किसी की मोटिवेशनल, किसी की जीवनी पढ़ो, किसी का आप गीता पढ़ो, ताकि वो संस्कार, वो सारा आप जो है आप एब्जॉर्ब करो। आप जब वो पढ़ते हो तो चाइल्ड आपकी थॉट्स को एब्जॉर्ब करता है, आपकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करता है, आपके इमोशंस को, वो इनविजिबल है। Hello everyone, welcome to today's podcast video. In today's podcast, we will discuss about mind positivity, mind power and emotional healing. Now let me start this with asking you all a question. Did you know every single thought that you think is actually shaping your reality right now in this very moment also? Both science and ancient wisdom agree that mind is the most powerful tool that any human being can ever own. Yes, your mind is the most powerful tool. So the mind power is not about, pretending everything is fine, there are no problems, but it is about consciously choosing your one thought that helps you grow, that helps you heal, and that helps you move forward even when the life is hard. Thoughts are not just the words in our head. They are the energy that influences our emotions, our body, even our relationships and the decisions that we make. Any negative thought held long enough actually turns to a belief turns to a behavior, and behavior is ultimately your life. So let me tell you one powerful truth about this. You have the control to change how you think, and once you change your thought process, you can literally change everything. Welcome to today's guest, Renu Gulati, who have spent 35 incredible years proving that. She is an astrologer, tarot card reader, and a mind positivity coach. She has healed and transformed lives of thousands of people, including children and adults alike. She scans the mind, heals the deep emotional wounds, and turns invisible to visible. So we welcome Mrs. Renu Gulati to the show. Can we have your brief introduction, ma'am? Thank you. So my name is Renu Gulati, and I started learning at the age of, say, around 25, 26. This journey is very long, and slowly I started getting deeper into this. It was just a, sake of curiosity I started. But when I saw this science very interesting, so then I started learning more and more courses like hypnotherapy, pranic healing, and astrology, numerology, scanning, and later I learned about more deeper the layers of blockages in a person's life. It can be stuck emotions, it can be rejections, it can be guilt, anger, fears. So then the journey begins, and I understood that in every issue there is a very strong emotion, because generally we teach our children that ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट हम अपने बच्चों को इमोशनल हैंडलिंग नहीं सिखाते हैं। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ टू डील विद दिस इमोशन, हाउ आर यू फीलिंग, वी नेवर, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, वी टॉक लाइक दिस,
बट वॉट इज गोइंग इनसाइड, वॉट अ पर्सन, कोई भी हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो, वो सेल्फ से क्या टॉक करता है. एंड सेकेंड थिंग, ये इमोशनल बैगेजेस तब ज़्यादा हो जाते हैं जब हम एक लर्निंग की हमें ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं हम डिप डाउन होते हैं अपनी लाइफ में. सो वहाँ जो उस सिचुएशन में लर्न कर लेता है वो आउट हो जाता है. लेकिन मैनी पीपल यू नो दे स्टक डीप, देन दे नीड द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, बिकॉज they have studied these subjects. So then this way we help people. Okay. So you've spent 35 years working with the power of the mind. So in simplest word, what actually is mind power, and why do most of the people throughout their lives fail to recognize it? You see, एक चीज तब पावरफुल होती है जब मैं उसको डिनाई करती हूँ. तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो चीज हावी होती है. ठीक है. Yes. जैसे आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो वो बच्चा कैसे लेता है कि मुझे तो यही करना है. सो दिस इज द वे. ये हमारे इमोशंस और थॉट्स भी यही हैं, वो हमें अपने ट्रैप में ले लेती हैं. एक नेगेटिव लूप है, यू माइट हैव हर्ड द लूप. हम लूप में फंस जाते हैं. लूप कैन बी पॉजिटिव एंड लूप कैन बी नेगेटिव. सो अगर हम ये सोचें कि ये अच्छा है, इमोशन है, आप नेगेटिव इमोशंस को डिनाई करते हो और हर टाइम हर किसी को गुडी गुडी अच्छा लगता है, पॉजिटिव इमोशन, एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है. बट हम में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं. प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे में जो कोई नेगेटिव इमोशन है हम उसको डिनाई करते हैं, तो वो इमोशन हमारे को प्रूव करने के लिए वो और मल्टीप्लाई हो जाता है. सो कोई इमोशन है, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, करो, एक्सेप्ट करो, डोंट डिनाई दैट. अब वो जल्दी चला जाएगा. Okay. Yeah. So you've worked with children, adults, adolescents, teenagers. So at what age does the mind get attracted to negative thinking, and what is the right time when the adults actually adults, if I talk about specifically, plant that seed of positivity that takes them throughout their life? Very beautiful question. And it started with the journey when the child is in the womb of the mother, because I have done around 15 to 2000 study and readings for dermatographics intelligence test for the children. This is basically for the children, and the journey started because you see, जब मदर के वूम में एक बच्चा होता है, वो मदर का क्या स्टेटस होता है, वो बच्चे की एक ओवरऑल इंटेलिजेंस के एक मार्क डिसाइड कर देता है. सो व्हेन आई यूज्ड टू सी द उसका ओवरऑल जो एक नंबर होता था वो आ जाता है कैलकुलेट करके. जब भी वो 60 या 70 के आसपास होता था ना, आई यूज्ड टू कीप इट असाइड द एंटायर रिपोर्ट. आई यूज्ड टू आस्क द मदर व्हाट हैपेंड, आपकी लाइफ में क्या चल रहा था कि जब आपने इस बच्चे को कैरी किया हुआ था. देन द मदर started, they start crying because they were going through very bad. All the emotions the child carried from there only. उसका सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो वहीं से ही बन जाता है. Okay. So this is what is the womb healing, the inner child healing. It's all the childhood traumas. So this is known as generational traumas that carry on Yes. from one generation to Yes. generations. Yes, yes, yes. इसीलिए क्योंकि हमारे धर्म ने इसको इतने अच्छे से इसको पहले ही समझ लिया था, तो इसीलिए ही बारी बारी बोलते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन को सब लोग बोलते थे, किसी की मोटिवेशनल, किसी की जीवनी पढ़ो, किसी का आप गीता पढ़ो, ताकि वो संस्कार, वो सारा आप जो है आप एब्जॉर्ब करो. आप जब वो पढ़ते हो तो चाइल्ड आपकी थॉट्स को एब्जॉर्ब करता है, आपकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करता है, आपके इमोशंस को. वो इनविजिबल है,
वो इवन आपकी हैबिट्स को भी एब्जॉर्ब करता है। एक अगर मदर है, उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो डिप्राइव्ड ऑफ फूड है, तो वो चाइल्ड में 100% कैरी फॉरवर्ड होगा। वो चाइल्ड कभी भी, वो जितना भी खा ले, उसकी भूख नहीं खत्म होगी, उसको भूख लगती ही रहेगी। इट इज सो डीपर दिस साइंस इज। Yeah. Okay. So drawing from this only, my next question is: most often, people, realize very late. Is there a connection? Yes, of course, it's there. But how strong is the connection between the emotional trauma and the physical illness that manifests as a disease? ओके, सो मैं बता दूं, ये जो मैनिफेस्ट होता है हमारे बॉडी पे, वो लास्ट लेयर होती है। ये लेयर्स होती हैं, ओके, लेयर्स होती हैं। सो सबसे पहले मेंटल, जो बहुत मैं जो भी सोचूंगी वो इमोशन क्रिएट करेगा। ठीक है, उस इमोशन के अकॉर्डिंग मैं एक्शन उठाऊंगी, मैं स्टेप उठाऊंगी। अगर तो वो नेगेटिव इमोशन है तो मेरा जो स्टेप होगा वो फियरफुल होगा, पता नहीं, मैं कंफ्यूजन वाला होगा, पता नहीं मैं करने तो लगा हूँ, आई डोंट नो कि मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यू आर नॉट श्योर। ठीक है, सो वहाँ पे वो है, तो उसके रिजल्ट भी वैसे आएंगे देर। जबकि कुछ लोग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग माइंड होते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज, उनकी डिटेलिंग या उनकी फीलिंग्स इतनी पॉजिटिव, और वो इतना खुश फील करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मैंने तो कर लेना, ये 100% ये मेरे लिए ही है, हो जाना है, मुझे पता, मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। देन दे टेक एक्शन, 100% सक्सेस इज देयर। अभी मैंने रिसेंटली ही एक दुबई की अपने क्लाइंट की हमने एक रीडिंग करी थी माइंड की। उसका प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम था। प्रोजेक्शन का कार्ड निकला सोल का। सो प्रोजेक्शन में वो हर किसी चीज को वो नेगेटिव प्रोजेक्शन ही सोचती थी, हर चीज में। सो हमने सिर्फ उसको अवेयरनेस में दिया और हमने उसको सिर्फ यही बोला कि आपने थोड़े दिन के लिए आपने अपने ये देखना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो उस काम करने से पहले मेरी थॉट कैसी है। अगर वो नेगेटिव है तो आपने थोड़ी देर रुकना है, सेटल करना है, फिर अपने आप पे काम करना है। नहीं, अपने आप को, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स है, ब्रीदिंग टेक्निक है या और भी बहुत सारी ऑरा क्लीनिंग की टेक्निक्स हैं। फिर थोड़ी देर उसको पॉजिटिव एफर्मेशन चैंट कराओ, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो उसको धीरे धीरे हमने उसको अवेयरनेस में रहने के लिए बोला कि बी अवेयर, आप कुछ भी करने लगे हो, आप क्या सोचते हो, ओनली दी अवेयरनेस। फिर हमने बोला जब अगर नेगेटिव थॉट आए, बिकॉज हु क्रिएटेड द थॉट? मी। हु हैज द पावर टू कैंसिल और डिलीट? मी। So since morning till night I am in the awareness of my mind कि मेरा माइंड क्या थॉट क्रिएट कर रहा है। जैसे कुछ होता है अवेयरनेस में हो तो आपके पास पावर है ना, बस उसको कैंसिल करके उसका देन पॉजिटिव क्रिएट करना है। दैट्स ऑल, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक टू, वो कोई भी कर सकता है। कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको बोलो आई कैंसिल, आई कैंसिल, आई कैंसिल, और आई डिलीट, आई डिलीट, आई डिलीट, एंड देन उसका ऑपोजिट पॉजिटिव एफर्मेशन 11 times, 21 times, and then do the deep breathing. Your healing session is done. Oh, that's great. Yeah. It's actually that easy, which people have thought made it so complicated by thinking that it's going to be long process. Who will get into healing, and they actually continue in the chain of those thoughts leading to overthinking. Yes. But it is very easy to say control your thoughts. Make it them You cannot control. Yeah, that's what my point is. आप गूगल कर लेना कि 1 मिनट में माइंड जो है, आई थिंक 40,000 above. Yeah, there's a specific. There is a specific, because in hypnotherapy I learned it. 1 मिनट में हमारा माइंड इतने 1000 थॉट कर सकता है. How can you stop? Because conscious mind is the factory of thoughts only. उसी को ट्रेन करना है, उसी को ट्रेन करना है. Yeah. Actually, how to recognize कि this is the time to stop this thought and change it to positive? Awareness में रहना all the time. और फिर आदत पड़ जाती है ना. अब जैसे अब मुझे हर चीज में, because from the beginning of my life, मैं childhood से ना, I used to look for the solutions. So this is the reason I am here.
Yes. सो Yes. हर सिचुएशन में जब भी मेरी लाइफ में आई तो मैं ये सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से निकलने के लिए, मैं इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. आई यूज टू डू द सेल्फ टॉक, बिकॉज सेल्फ टॉक आपकी थॉट तो कनेक्टेड है ना, थॉट आपकी है तो आपको सेल्फ टॉक क्यों नहीं करनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन गुड हैबिट. आप जब अपने सेल्फ टॉक करना शुरू करेंगे और अपने उसको कॉन्शियस माइंड को आप उसको प्रोग्राम कर देंगे, तो हर चीज में पॉजिटिव देखियो. दैट्स ऑल. आई सी पॉजिटिव इन एनीथिंग, एवरीथिंग. आपको दिखना शुरू हो जाएगा. आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग चेंज है. बड़ी पुरानी कहावत है, एक ग्लास में आधा भरा हुआ है, वो बोलेगा आधा खा लिया, वो आधा भरा हुआ है. ऐसे एक और कहानी है बहुत ही सुंदर. एक बहुत बीमार एक डॉग था, उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बहुत लोग कह रहे थे कितना मतलब ये ऐसा है, कितना अगली लग रहा है, कितना ये लग रहा है. तो एक साधु निकला वहां से, उसने बोला इसके दांत कितने सुंदर हैं. Okay. इट इज मेरा परसेप्शन है, मेरा नजरिया है. तो अपने नजरियों को बदलना हर चीज में पॉजिटिव करने के लिए. Okay. ऑफ कोर्स लो टाइम आता है, रिजेक्शंस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, बट वो फेलियर क्यों आया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन करेगा. Failure to work on your यस यस right यस from your mind, सेल्फ. emotions, thinking, Yes. to your physical. दिस इज द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. Yeah. आपके जो आप पे गुजर रही है वो आपके पेरेंट्स नहीं रियलाइज कर सकते, जो वो गुजर रही है वो आप नहीं रियलाइज कर सकते. सो अपना असेसमेंट थोड़े थोड़े टाइम में करना, तब आएगा. यू कैन नॉट अवॉइड. द लाइफ लाइन गोज लाइक दिस. दिस इज डाउन अप, बट डाउन हैज कम टू टीच यू समथिंग. Something. It is What? acceptance. If you accept Yeah. down भी आएगा, बिल्कुल just आएगा. like ऊपर आया है. Of course. It will help you pass through that. You see, if you will not learn the lesson, it will come again and again. Then loop बन जाता है. अगर आप ये मेरी लाइफ में सिचुएशन आई, इसने मुझे क्या समझाया, इसमें मैं कहाँ मेरा गैप था, मुझे कहाँ और अपग्रेडिंग करनी है. लर्न दैट. एंड आई स्वेयर ओनली फेलियर इज द थिंग जो हमारे को सिखा के जाती है. सक्सेस तो हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सिखाता तो फेलियर्स हैं, रिजेक्शंस हैं, है ना. Yeah. Yeah. लेकिन जो नहीं सीखेगा वो लूप में चला जाएगा. जब ज्यादा हो जाती है तो वो डीपर में चले जाते हैं. देन दे नीड द आउटसाइड हेल्प. Outside help. Okay. Yes. By outside help we mean maybe psychologists, counselors, हीलर्स. healers. समटाइम किसी की प्लानेटरी पोजीशन ऐसी हो जाती है, वो उसके भी बस में नहीं होता. Yeah, ma'am, you're an astrologer, tarot card reader, then mind positivity coach. You hold a lot of professions. And then, can you tell me the core of all the professions? Because I'm sure it's going to be same. The core is same, and all these are connected. Yeah. And I want you to explain this connection between science and ancient wisdom. Everything is connected. Everything is connected. We all are made up of 5 elements only. So we are connected. Yes. But yes, our ऋषि मुनीज they meditate a lot. उन्होंने जो wisdom और वो निकाली है, इसीलिए तो आज भारत यूं महान है. बाहर से कितने लोग कुंभ में आते हैं, फॉरेनर्स. अभी अंबुबाची मेला हुआ है, कितने फॉरेनर्स थे कामाख्या देवी. कामाख्या पे. क्यों आते हैं वहां पे? बिकॉज कुछ तो पावर है ना, कुछ तो है ना. वो सारी नॉलेज है, बेसिकली सब नॉलेज है, वो साइंस है. जैसे शिवा एंड शक्ति, बिकॉज इट इज द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड ऑफ योर सिस्टम. ईड़ा पिंगला सुषुम्ना. बिकॉज वी हैव ये मेन 3 है हमारे पास. या मैं फेमिनिन प्रिंसिपल से ऑपरेट करूंगी ज्यादा, या मैस्कुलिन से करूंगी, या मैं बैलेंस होके करूंगी. जब मैं बैलेंस हूँ तभी मैं मूव कर पाऊंगी. Ma'am, what is your take? Does this generation believe more in astrology and tarot card reading, or they believe more in, self-healing and meditation, positive thinking? देखिए, आज का जो टाइम है, मीडिया ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है, बट मुझे ये लगता है कि सबको सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव थिंकिंग और एक ना एक छोटा सा सेल्फ हीलिंग का कोर्स ज़रूर सीखना चाहिए. सो दैट आप अपनी लाइफ में हैं, सो आपको बारी बारी कहीं बाहर नहीं भागना पड़े.
आप छोटी सी, लेकिन उसमें भी इतना ज्ञान और इतना सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल होना चाहिए। People actually run away from long procedures and मैं बोलती हूँ, मैं एक प्रेयर से भी आपकी हीलिंग हो जाती है, प्रेयर से भी हीलिंग हो जाती है। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट short thing. या Okay, and how would you link this to the stage fear that we have seen millions of children facing stage fear, and I think the percentage is increased from past. Earlier, people were still very confident and did not have so much of, did not even think this much before going to stage. मैं क्या बोलूँगा, लोग मुझे judge तो नहीं करेंगे. But nowadays, children are, I don't know if it's the use of social media or what, children are more fearful year before going on stage, speaking up, and they fear a lot of people's judgment. देखो, ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे, आपके पूरा आपकी फैमिली के एटमॉस्फेयर पे, बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे पुराने ज़माने में लड़कियों को बोला था तो चुप हो जा, लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती हैं। व्हाट हैपेंड, वो लड़कियों की पावर ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया गया, है ना? ठीक है, अच्छा चलो सप्रेस कर दिया। अब बड़ी मज़े की बात है, लेडीज़ फिर मिलती हैं, अपने इमोशन आउट कर देती हैं, शेयर कर देती हैं, ठीक है। मेल्स को बोलते हैं रोना नहीं है, चुप, मेल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। क्या हुआ है, मेल्स को हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, आप उठा के देख लो नंबर, बिकॉज दे डोंट शेयर देयर इमोशंस, Because they've been more इमोशनल वेंटिंग आउट इज वेरी वेरी मस्ट। आपके अंदर जो एक, आपके हर स्टेज पे आप कुछ ना कुछ कैरी करते हो, तो उसको हील करो, एक्सेप्ट कर लो, उसको रिलीज करो। मेन थिंग इज टू रिलीज, डोंट होल्ड ऑन टू दैट। वो हो गया, पास हो गया। No, but how to choose कि किसके सामने वेंट करना है? बिकॉज एक बोला जाता है ना, किसी बाहर वाले से आंसू मत उछवाना, समथिंग देखो, कि तो उसका भी चुकाना पड़ता है। देखो, मैं बिकॉज आप किसी काउंसलर को वो सुन लेगा, वो थोड़ी देर का है, अगेन आप घर जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। अगर उसको डीप डाउन आप खुद निकालो, सेल्फ टॉक करो और खुद निकालो। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। मैं आपको ये टेक्निक बताती हूँ। I got addicted to something, okay? And my inner voice said, आपको, you are going on a wrong, आप इसके habitual होते जा रहे हो। I said, okay. Then whenever I used to see that thing, मैंने उसको बोलना शुरू किया, I am powerful than you, I am stronger than you, I am stronger than you. Because वो चीज़ मेरे सामने इतनी होती थी कि दिन में मुझे 5 से 6 दफ़ा दिखती थी। तो लेकिन मैंने क्या किया, उसको बोलना शुरू किया, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, आई एम बिगर देन यू। व्हाट हैपेंड, मेरी कॉन्शियसनेस से एक्सपैंड किया ना, पहले उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड थी तो वो पावरफुल था। जब मैंने उसको बोला, अपनी एक्सपैंड करी, उसकी घट गई ना अपने आप, मैंने उसकी नहीं घटाई, मैंने अपनी एक्सपैंड करी, अपनी एक्सपैंड करी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, विद इन द 15 days आई स्टार्टेड, मुझे उसका एडिक्शन जो था, धीरे धीरे जो है, मुझे एडिक्शन खत्म हो गई। कोई भी चीज आपको डराए, So it was not the outside world which helped, it was you inside, your inner should be stronger than your outer। आप बाहर दिखाओ मैं बहुत हूँ, अंदर से डर लग रहा है, वो क्या फायदा? हाँ। जब इनर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है तो आउटर तो, आपने भी, जब मैं आई आपने बोला क्वेश्चन, मैंने कहा नहीं, आप पूछिएगा। सो बिकॉज वाई, बिकॉज माई इनर सेल्फ इज सो स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट। yes And you won't believe, I haven't read the questions even, what have you, I didn't even googled the answers, nothing, because I know what are the answers, because this is the result of that positivity। हाँ, मैं कर सकती हूँ। And second thing, only knowledge can increase the self confidence। आपको be the master, don't be the jack of all, be the master of one। एक सब्जेक्ट को पकड़ो, हर किसी में एक हाईएस्ट पोटेंशियल होती है। बच्चों को, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, जैसे लता मंगेशकर के पेरेंट्स को दिखी,
हर किसी को दिख जाती है कि मेरे को बस यही करना है। तो क्योंकि बच्चा पैदा होते तो खुद नहीं वहां तक पहुंच जाता ना, है ना, वो पेरेंट्स को ही देखना चाहिए ना। तो पेरेंट्स देखे मेरा बच्चा आर्ट में अच्छा है, मेरा बच्चा उसमें अच्छा है, तो उसी में आगे प्रमोट करें। जिसका फिजिकल एक्टिव है बहुत अच्छा, वो फिजिकल उसमें जाएगा। जिसका मैस्कुलिन एक्टिव है, सबकॉन्शियस एक्टिवेट है, वो सेल्फ में और स्टडी में जाएगा। बड़ी क्लियर है। मतलब देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट। मैं तो किस हाथ से लिखते हो वहां से भी पता चल जाता है इसका क्या माइंड एक्टिव है। बिकॉज जिसका लेफ्ट हैंड है उसका सबकॉन्शियस ओवर एक्टिवेट है, वो किसी के अंडर काम ही नहीं कर पाएगा। उसके सेल्फ की उसको फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी उसकी इतनी पावरफुल है, वो पर्सन नहीं कर पाएगा। वही बिजनेस करेगा, वो कभी सर्विस पसंद ही नहीं करेगा। जहां उसको मौका मिलेगा वो बिजनेस से स्विच कर जाएगा। That's very insightful. यस। और जो जितने आर्टिस्ट हैं और ये सब हैं, इनका सबका सबकॉन्शियस ओवर एक्टिव है। Okay. बट कॉन्शियस माइंड से हम उसको एक्वायर्ड इंटेलिजेंस कर लेते हैं, तो देन इट बिकम्स द मास्टरी। अब जैसे नॉलेज है, जैसे नॉलेज है, जब तक मैं एनर्जी को फील नहीं करूंगी तो मेरी नॉलेज वेस्ट है। इतने कोर्सेज कर लो, हीलिंग के कर लो, जब तक आप उस एनर्जी को फील नहीं कर सकते, नहीं आ सकता। हम तो कहीं जैसे जाते हैं, हम तो ऑरा एकदम स्मेल करके पता चल जाता है। किसी पर्सन से मिलते हैं, ये तो सबको ही होता है, बिकॉज हम मिले हैं तो हमारा ऑरा भी इंटरेक्ट करता है ना। किसी को मिलके आपको बहुत खुशी होती है, किसी को मिलके आपको डलनेस की फीलिंग होगी, किसी को मिलके आपको समझ नहीं आएगी। वो क्यों समझ में नहीं आएगी? बिकॉज उसके माइंड में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो आप भी उसको रीड नहीं कर पाएंगे। Okay. So ये तो एनर्जी रीडिंग है। This generation you call it as vibe match नहीं होगी। वाइब मैच, हम उसको ऑरा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। हाँ, इसका वाइब नहीं मैच करती। So what is the full form of vibe? Vibrations. Vibrations, yeah. So vibrations can be good, bad, ugly, mixed, confusing, angry. किसी को देख के लगता है यार ये तो बड़ा गुस्से वाला लग रहा है। So it happens like that. Okay. We've heard that words are very powerful. They hold the most power in them, and one should actually be choosy of what words they speak, what words they even think. So, ma'am, I would like you to expand on this, the power of words, which relates to mind power, and similarly, affirmations, manifestations, because, like I said, words are very powerful. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इसके बारे में बोलूंगी कि पावर ऑफ वर्ड्स नॉट फॉर द वर्ल्ड और पीपल। पावर ऑफ वर्ड्स इज व्हाट यू आर टॉकिंग इनसाइड अबाउट योरसेल्फ, अबाउट सेल्फ। मैं अपने लिए किस तरह के मैं वर्ड्स को चूज कर रही हूँ, बिकॉज जो हमारे वर्ड्स हैं, वो जो थॉट्स हैं, वर्ड सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेशन हो गई, तो वो हमारे इनर को पॉजिटिव और नेगेटिव करते रहते हैं। अगर अवेयरनेस में हो कि यार मैं गो थ्रू ये कर, नंबर 1 तो मैंने पहले भी बोला, बी अवेयर राइट नाउ। अगर आपके कोई चीज आ गई है, सपोज टीनेजर है, रिजेक्शन इज द रिलेशनशिप में रिजेक्शन बहुत कॉमन है, तो अगर रिजेक्शन है तो क्यों है, बजाय इसके कि बहुत हर्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए, डिप्रेशन में, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इस पे ना जाके आप अपने पे वर्क कीजिए। अपने आप से ये पूछिए कि व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ रिजेक्शन, मेरे में क्या कमी है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मे बी आप ड्रेसिंग नहीं ठीक कर रहे, मे बी आप अपने स्किन का नहीं ठीक से केयर कर रहे, मे बी आपका हेयर कट खराब है। सो मेक द चेंजेस, टेक द एक्शन एंड मेक द चेंजेस। और पावर ऑफ वर्ड्स तो आप गूगल कर लीजिए, डॉक्टर मासारू इमोटो हैं जिन्होंने इस पे पूरा रिसर्च किया है। उन्होंने पूरे एक पानी में लव, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वर्ड्स बोले, तो उसके बाद उस पानी का जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से किया तो उसके मॉलिक्यूल चेंज हो गए थे बिफोर एंड आफ्टर। और जब जिन और सेम आई हेट यू, यू आर इडियट, आप निकम्मे हो,
आप कुछ नहीं कर सकते। जब नेगेटिव बात बोले गए तो उनके जो उसका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल चेंज हो गया। एंड सेम वे उन्होंने राइस के साथ भी किया था कि उन्होंने एक राइस को खूब बोला आई लव यू एंड थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, यू आर टू गुड, यू आर, आप बहुत टेस्टी बनते हो, यू आर अमेजिंग। और एक को बोला अगेन द नेगेटिव वर्ड्स। जिनको नेगेटिव वर्ड बोला वो राइस जो थे वो एकदम से रॉटन हो गए जल्दी, और जिनको वो बोला और वो वैसे के वैसे थे, दे लिव्ड लॉन्गर। सो पावर ऑफ वर्ड्स तो बहुत ज्यादा है। Means, even it is said when parents keep criticizing their child, ये तो निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, it gets into the child. Yes. And they start, even if they have potential, they actually see themselves like that. सबसे बड़ी बात है आजकल इतना कंपटीशन है, कंपैरिजन इज द वेरी बैड एनर्जी। कंपैरिजन क्या करता है, आपकी एक यूनिकनेस है, यूनिकनेस को वो एकदम डिमिनिश कर देता है कंपैरिजन। सो यार वट एवर यू हैव गॉट दैट इज द बेस्ट, इवन इट इज अ बॉडी, इट्स अ माइंड, वट एवर इट इज, सी द यूनिकनेस इन यू। एवरी वन हैज द यूनिकनेस। अगर आप, आई एम सॉरी, अगर आप तो ग्रेजुएशन किया हुआ है या 12th किया हुआ है किसी पेरेंट ने, बट आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने चाइल्ड से। मैं ये नहीं कहती, आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हो, बट पहले आप उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको एक प्लेटफॉर्म तो दे दो। फिर देखो ना अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो। अब एक बच्चा कह रहा है मेरे को ये सब्जेक्ट लेने हैं, मेरे को इसमें हैप्पीनेस मिलते हैं, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इसमें सक्सेस, आई नो आई विल एक्सेल इन दिस, बट प्रेशर होता है डॉक्टर्स की फैमिली के बच्चे को, आपको डॉक्टरी ही करनी है ना। क्या हुआ वो सिंगर बने बैठे हैं। बिकॉज वी हैव टू, इट इज द बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। आपकी सिंक्रोनाइजेशन का सिर्फ फीलिंग से पता चलता है। जिस चीज में आप हैप्पी हो, कॉन्फिडेंट हो, वो आपके लिए है। जिस चीज में आपका मूड नहीं है, आपका मन नहीं करता, आप नहीं करते, तो वो नहीं होगा। मैं अपने ही डॉटर का बात बोलती हूँ कि आफ्टर 10th वो लेफ्टी है, मुझे पता था इसका सबकॉन्शियस ओवर एक्टिव है, तो इसको किताबें, ये साइंस मैथ्स इसको नहीं समझ में आएगा। फिर मैंने बोला जो तुम्हारे को चाहिए। उसने बोला मुझे कमर्शियल आर्ट लेना है। मैंने कहा ठीक है, गो हेड। एंड शी स्कोर्ड 98% मार्क्स इन दैट। एंड आफ्टर दैट अगेन मुझे पता था ये ग्रेजुएशन बीकॉम बीए नहीं करने वाली है, क्योंकि उसको ऐसे इंसान हाथ के हुनर में एक्सपर्ट होते हैं। देन अगेन व्हाट यू वांट टू डू? आई वांट टू बिकम अ शेफ। आई सेड ओके, नाउ शी इज डूइंग वंडरफुल इन हर जॉब। Amazing. शी इज शेफ बिकॉज आई डिड नॉट प्रेशराइज हर, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। अरे भाई उसका कैलिबर नहीं है। तो इसको देखना पेरेंट्स को वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। So like you said, self-awareness, but in a child's case, it is about parents' awareness. Parents should be aware about. Yes, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, वो अपना उसका नहीं है, बट अगर पेरेंट्स उसको अगर देखें, जो पेरेंट नोट डाउन कर जाते हैं वो उनके बच्चे एक्सेल कर जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। Ma'am, like you mentioned that this emotional trauma or the negative thinking starts right in the womb. It starts affecting the child right in the womb. So at what age does the child feel free or independent to who can change their thoughts, you know? अगर एक बच्चा है जिसको नेगेटिव ही, बिकॉज द मदर while was carrying that baby was having those negative thoughts and उसके साथ XYZ चीजें हुई हैं, but at what age can a child, you know, stand up for himself or herself thinking कि बहुत हो गया नेगेटिव, I should make a stop and start my life with positivity? वो चाइल्ड में किस एज में वो डेवलप होता है? देखो वो टीनेजर में हो जाता है कि जब तो या तो वो किसी और को देख के मोटिवेट होकर उसको चैलेंज में ले लेता है। जब उसने चैलेंज में ले लिया, nobody can stop। जो उसके साथ ही रह गया
तो वो फिर उसका वो लूप हो जाती है। Okay. उसको ब्रेक करने के लिए देन दे नीड द गाइड। ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप किसी से अपनी ऑरा स्कैनिंग कराइए, रीडिंग कराइए। बेसिकली आई एम अ केपी एस्ट्रोलॉजर एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द केपी एस्ट्रोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्न्स। इसके पॉजिटिव पैटर्न क्या है, इसके नेगेटिव पैटर्न्स क्या है। आई टेल देम कि ये आपका नेगेटिव पैटर्न है, ये पॉजिटिव पैटर्न है। सो मैं बोलती हूँ आप अपना ये पॉजिटिव पैटर्न को एक्टिवेट कर दो, जो नहीं है ना उसको छोड़ दो। होता क्या है कि अवर कॉन्शियस माइंड रन्स आफ्टर द वॉइड्स। हम में ये कमी है, इसको पूरी कर लो, ये कमी है। अरे जो है उसको डेवलप करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको डेवलप करना है, हमें उसे डेवलप करना है। Okay, ma'am, one last question for you. Like you've transformed lives of thousands, like I said. How does it affect your aura? Because if I am your client, I am coming out to you to heal me because I have a lot of negativity, negative thoughts. How does this affect your aura when you close everything, go back home? How do you cleanse yourself? I'm sure the aura affects you. yes, because ऐसे जो भी लोग आते हैं वो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, बिकॉज एनर्जी हायर टू लोअर पे जाती है। सो वी आर हैबिचुअल, हम अपने ऑरा को लॉक रखते हैं। हम उनके जाने के बाद अपना डेली मेडिटेट करते हैं, अपना ऑरा स्कैनिंग करते हैं, अपनी ऑरा क्लीनिंग करते हैं, अपने घर की ऑरा क्लीनिंग करते हैं, अपने स्पेस की क्लीनिंग करते हैं। वी रेगुलर टेक सॉल्ट बाथ्स एंड many things we do. I've heard a lot about salt hand wash, salt bath. So why only salt? Because salt has the power to disintegrate the negative energy. Okay. With salt mopping of the home. Yes, I've heard about it. Yes. Salt hand wash, salt bathing. Yes. A lot of things about salt. Because हमारे ये सब जगह हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, Okay. जिससे हम एनर्जी से हम वाइब्रेशंस हमारे अंदर आ जाती हैं। बट ड्यू टू हमारे माइंड की लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव थॉट, ये ब्लॉक हो जाती हैं, फ्री फ्लो नहीं हो पाते। सो इसीलिए ही एनर्जी के जब तक ये ओपन नहीं होंगे पोर्स, तो हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, आप मेकअप करके भी हटा दो, पोर्स ओपन करो। दिस इज द रीजन, है ना। उसके ऊपर फिर क्रीम लगा दो फेशियल के बाद कि वो पोर को बंद कर दो, ताकि बाहर की गंदी एनर्जी ना जाए। सो दिस इज वेदर वी हैव टू लर्न हाउ टू लॉक माई ऑरा, हाउ टू ओपन माई ऑरा। व्हेन यू आर एट अ गुड प्लेस, यू शुड ओपन योर, unlock your aura, your chakras, your energy centers. And when you are at negative places, like किसी के cremation में गए हैं, किसी के ऐसी जगह गए हैं, even hospital भी गए हैं, so say I lock my aura, I lock my aura. It is the locking of my aura, that's all. Sit like this, it is a locking aura. And then it is I open my aura, I open my aura. These are the mudras. हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दे के गए हैं। So the thumb between two fingers, I lock my aura. okay. Even And this is even by saying 3 times, I lock my aura, I lock my aura, only positive things are allowed to enter in my life and in my aura. Repeat many times. You will see the good things are coming into your life. Because जो भी चीज़ हमारी लाइफ में मिलेगी ना, हमारे ऑरा से मिलती है। हमारा ऑरा अट्रैक्ट करता है ना। अट्रैक्शन पावर, मैग्नेटिक पावर्स, ये किस में होती हैं? ऑरा में होती हैं। सो ऑरा किसका अच्छा होगा? जो इंटरनली कॉन्फिडेंट होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसको पता है मेरे पास नॉलेज का सपोर्ट है। नॉलेज का सपोर्ट जिसके पास आ जाए, मास्टरी आ जाए, चाहे वो एक्टिंग की हो, चाहे वो सिंगिंग की हो, जिसके पास चाहे उसकी भी तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं क्लासेस लिए होंगे ना। उसको पॉलिशिंग करना पड़ता है। आपके पास जो भी इनर टैलेंट है उसको पॉलिश करना पड़ता है। And of course, viewers must have read books on law of action. We all have. Yeah. But it is just, we are not able to apply it in the real But only the best is law of positive thinking. law of positive. Yes, the power of positive thinking. Power of positive thinking is the first step to start with. Okay. Yeah. That was great, Renu ma'am. I'm sure this conversation has been nothing short of extraordinary, and you have this unique, potential that you scan the mind, deep wounds, you heal them, and you work on it. Thank you so much for your valuable insights and time, ma'am. I'm sure my aura is positive. Yeah, you are. At the end of this, Yes, I am feeling very positive, and
I am sure so does the audience. Thank you so much for your valuable insights, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. Thank you.